ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 52 ਬਚਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਰਲੇ 52 ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ 27ਵੇਂ ਬਚਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 27ਵਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ ਭਾਵ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀਦ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸੋ 12ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਤਾਂ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗਤੇ ਵਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ। ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਰੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਿਭ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਸ ਖਾਵੇ। ਉਸ ਜੀਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ऐसे जीवन का भी की फायदा फिर जे जीवे पत लथी जाए जिथे तेरी इज्जत ही कोई नहीं सब हराम जेता के सिखाए तो फिर खाई भी जाएगा दूजिया के दर से बैठ के जीवी भी जाएगा तो वह हराम होएगा। तो सतगुरु इस मसले बहुत सख्त ने कि सिख ने सुतंत्र विचरना है। और इतने एक गल होर साझी कर लवां कि जिहड़ी गुरु साहब ने रहत मर्यादा दी है ना, जिहड़े गुरु साहब ने गुरमत के सिद्धांत दिते ने, जिद्दां दी जीवन जाच सिख नूं सतगुरु ने दिती है, सिख किसी का गुलाम हो ही नहीं सकता, सिख किसी के मूहरे झुक सकता ही नहीं। क्योंकि झुकदा बंदा अपनी लोड़ां लई है ना, सिख नूं कहा तू किरत अपने आप करनी है, आप किरत करनी है, कमाई करनी है, तो कमाई करके फिर बाਅਦ ही करना है। घाल खाए कि हथों दे, घाल खा के कि हथों देना है, तो हथों देने वाला क्यों गुलामी करेगा? मंगण वाला तो गुलामी करे, हथों देने वाला क्यों गुलामी करे? घाल खाए कि हथों दे, ये मर्यादा सानू देती। सिख ने आप अपनी कमाई करनी है, सिख ने अपने खाण जोगा आप कमाना है, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ भी है, लोड़वंदां लई लंगर भी लाने ने। और जिहड़ा सिद्धांत दिता है सतगुरु ने, देग की गल करदे नाल तेग की भी गल करनी है। देग तेग फतेह पंथ की जीत, ये सिख पंथ का नारा है सतगुरु का दिता है। जिहदी देग विच फतेह है, जिहदी तेग विच फतेह है, वो क्यों किसी मुरे झुकेगा, क्यों गुलामी करेगा? सो सिख ने हमेशा सुतंत्र विचरना है। तो नाल नारा लाता, जिहदी देग ते फतेह है ना, जिहदी देग विच फतेह है, जिहड़ा आर्थिक तौर पर तगड़ा है, जिहदी तेग विच फतेह है, जिहड़ा फौजी शक्ति के तौर पर तगड़ा है, दोने जिहदे कोल देग ते तेग दोने ने, फिर वो जो रखोगे नाल, तो फिर सतगुरु कहते हैं पंथ की जीत भी होएगी। जिहदी जित होएगी वो गुलामी क्यों करेगा? सिख ने सुतंत्र विचरना है। कलगीधर दा 27वां बचन है और ये पीछे एक सिद्धांत खड़ा है। सिख ने सुतंत्र विचरना है, आप गुलाम नहीं होना, पर किसी को गुलाम रखना भी नहीं। आप किसी मुरे झुकना नहीं, पर किसी को झुकाउणा भी नहीं। आप किसी मुरे निमना नहीं, पर किसी को निभाउणा भी नहीं। आप किसी का हक मारना नहीं, पर किसी को अपना हक मारन भी नहीं देना। आप किसी को डराउणा नहीं, पर किसी तो डरना भी नहीं। गुरु तेग बहादुर का वचन है ना, भै काहू को देत न नह भै बाण ते आण, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि ज्ञानी उही है, ज्ञानवान उही है, सिख उही है। सिख के नाम ने सारे, गुरसिख गुरमुख खालसा ज्ञानी सारे सिख के नाम ने, गुरमत फलसफे चलने वाले मनुख के नाम ने। तो गुरु तेग बहादुर कहते हैं सिख उही है, ज्ञानवान सिख उही है कि जो की करता भै काहू को देत नह भै मानता, ना किसी का डर मनता है तो ना किसी को डर देता है, ना किसी तो निमदा है, ना किसी को निभाता है, ना किसी अगे झुकता है, ना किसी को झुकाउंदा है, किसी को डर देता नहीं, आप डर मनता नहीं। तो कहो नानक सुन रहे मना, ज्ञानी ताहे बखान, ज्ञानी उही है। गुरु तेग बहादुर का वचन यह आदर्श है सिख का कि ना किसी को डर देना है, ना किसी तो डरना है, ना किसी के मूहरे झुकना है, ना किसी को झुकाउणा है। सिख ने कलगीधर पातशाह का वचन सुतंत्र विचरना है, सुतंत्र विचरना है। सो ये गल याद रखनी। जिहड़ी गल इस वचन का दूजा हिस्सा है कि राज काज के कामां उत्ते दूसरे मतां दे पुरुषां नूं अधिकार नहीं देना। इस तो भाव पता की है, उस समय में जाके गल करी जिहड़े समय कलगीधर पातशाह विचर सन। ਇਹਦਾ मतलब है सीधा सीधा मतलब है उस समय की नाल जोड़ के कि ਜਿਹੜੇ विदेशी धारवी अपने जोर दे नाल, अपनी ताकत दे नाल आके देश के उत्ते हमलावर होकर, देश दीयां इज्जत नूं लुट के, देश की संस्कृति नूं बर्बाद करके देश के उत्ते हाकम बन के बैठ गए ने, उन्हां वाल इशारा है। ਇਹਦਾ मतलब है कि राज काज के संबंधित जिहड़े काम ने सारे सारे विदेशी धारवियां नूं उहदे उत्ते जिहड़े हमलावर होए ने उन्हां नूं उत्थे मनमर्जी नहीं करन देनी। जे विदेशी दूसरे मतां दे लोग, बाहरों आए हुए लोग, दूसरी विचारधारा वाले लोग, जिहड़ी तुहाडे सभ्याचार विचों नहीं, जिहड़े तुहाडी संस्कृति विचों नहीं, तुहाडे मत विचों नहीं, तुहाडी जिहड़ी पूरी चलदी आ रही परंपरा उहदे विचों नहीं, बाहरों आके ने, वो जदों भी तुहाडे देश उत्ते हमलावर होणगे, तुहाडे देश दे जदों उत्थे उन्हां दी राजकाज होवेगा, जदों उन्हां दी मर्जी चलन लगेगी, जदों अपनी मर्जी नाल करन लगणगे, जदों इन्ने ताकतवर हो जाणगे, वो तुहाडे देश दे विरसे नूं, तुहाडे देश दी संस्कृति नूं, तुहाडे देश दे धर्म नूं, तुहाडे देश दी बोली नूं, तुहाडे देश दे सभ्याचार नूं, तुहाडे देश दी लोकधारा नूं निश्चित अनुभूत कर देणगे।
इस करके उन्होंने इन्हां उत्ते काबज नहीं होण देना। दूसरे मतां दे पुरुषां नूं राजकाज के कामां उत्ते अधिकार ना देण दा मतलब यह है कि विदेशी धार्मिकां नूं, बाहरों आए लोकां नूं, जिहड़े तुहाडे मत दे नहीं, तुहाडे सभ्याचार दे नहीं, तुहाडी धरती दे नहीं, तुहाडे नहीं, तुहाडे बारे जानदे नहीं, तुहाडी बोली दे नहीं, तुहाडे धर्म दे नहीं, उन्हां नूं उत्ते काबज नहीं होंदा। और जदों गुर इतिहासक दे पढ़ के देखीए ना तो गुरु साहब इहदे बारे स्पष्ट संदेश देंदे ने। गुरु साहब की जिहड़ी मत सी ना, जिहड़े विदेशी धार्मिक उन्हां बारे बड़ी स्पष्ट मत सी। तुरक सन उदों, ते सतगुरु कहंदे तुरक सो जाने रोग समान। इहदा अगला हिस्सा, तुरक नूं रोग समान जानना है। ते रोगी नाल किते प्यार थोड़ा, रोग जिहड़ा हुंदा, जिहड़ा रोग तुहानूं चंबड़ जाए, उहदा इलाज कीता जांदा है ना। चुंबड़ गया रोग, चुंबड़े हुए सन, धाड़वी आए सन, हमलावर आए सन, हाकम बन के बैठ गए, सभ्याचार नूं लताड़ना शुरू करता, मंदिरां नूं ढाउणा शुरू कर दिता, बोली दे विच विगाड़ पाउणा शुरू करता, बोली जिहड़ी सी अपनी आके लागू कर लई। राज भाषा, देश की भाषा कोई होर है, राज भाषा कोई होर बन गई, बाहरों आई बन गई, फारसी बन गई, कोई नहीं बोलता, कोई जानने वाला नहीं। उत्थे हाकम दे कन्नां तक तुहाडी बोली नहीं पहुंचती, क्योंकि तुहाडी बोली नूं जानदा नहीं, बोला है तुहाडे बोलां प्रति, बहरा है तुहाडे बोलां प्रति, तुहाडी बोली प्रति बहरा है, बोला है। सतगुरु ने आख्या जी इहो जिहा रोग चंबड़ी गया है, तुरक आके बैठ गए ने राज ते आके, तुरक सो जाने रोग समान। जो विदेशी धाड़वी आके तुहाडे ते काबज होके बैठ गए ने, वखरी बोली वाले, वखरे धर्माचार वाले, वखरे सभ्याचार वाले, वखरी परंपरा वाले, उन्होंने रोग समझना है, तो रोग का जिन्नी छेती इलाज होवे करना चाहिए। सो रोग समझ के उसका इलाज करना है। तो जे किते रोग वध गया है तो ला के सिटना पैंदा, अंग ते अंग ला के भी सिट देना है। जो रोग वध जाता फिर अंग लाने पैंदे ने, भारत दे अंग लथे, रोग वध गया सी ना, जो अंग लथे भारत दे। कदी अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा होंदा सी, कदी पाकिस्तान भी अफगानिस्तान का भारत का हिस्सा होंदा सी, कदी बंगलादेश भी भारत का हिस्सा होंदा सी, कदी तिब्बत भी भारत का हिस्सा होंदा सी। अंग लथे ना, क्योंकि रोग इन्ना वध गया सी। और सतगुरु ने कहा तुरक सो जाने रोग समान, इन्हों रोग समान करके जानना है, ये रोग दूर करना है। पर इस जिहड़ी इस पद्धर तक जाके अपने देश नूं प्यार करने वाली गल, अपने सभ्याचार नूं प्यार करने वाली गल, अपने लोकां नूं प्यार करने वाली गल, अपने धर्म नूं, अपने विरसे नूं प्यार करने वाली गल, अपनी संस्कृति नूं प्यार करने वाली गल, ये जिहड़ी इस पद्धर तक जाके कही है, तो ये गुरु साहिबान दे हिस्से विच आई है। जे किते गुरु गोबिंद सिंह की गल करदे करदे नाल गुरु नानक की गल जोड़ के कर ली जावे ना, तो जो देश के उत्ते बहुत 2500 सालों तो हमले हो रहे सन, गुरु नानक साहब के जो समा सी उदों तक, तो उदों पहला सिकंदर, जनानी आए, हुन आए, शाक आए, पठान आए, चंगेज वर्गे आए, ते तुरक आए, पठान आए, मुगल आए, तो गुरु नानक साहब वेले तक मुगल आ गए सन, बाबर आ गया सी, मुगल आ गया। तो गुरु नानक साहब ने मुगल का जो बाबर का हमला देखा, तो गुरु नानक साहब ने पहला वो गल कभी किसी ने नहीं कही, निक्कियां निक्कियां रियासतां च वंडिया सी पूरा भारत देश, और वंडिया होया करके ही छोटिया छोटिया रियासतां नूं जितदे जितते, थोड़े थोड़े हमलावर आउंदे, छोटिया छोटिया रियासतां नूं एक एक करके जितदे, दूजे रियासतां चुप करके बैठिया रहिंदियां, ते पूरा देश गुलाम बना लिया। अंग्रेज़ां ने भी इदां कीता, 605 रियासतां नूं जित्तिया सी उदों तक, मुगलों ने भी इदां कीता, कल्ले कल्ले नूं जितदे आ रहे सी। ते गुरु नानक साहब ने जो वो लड़ाई देखी, जो जंग देखी, जो देखा मुगल ते पठान भारत ते कब्जा होने एक दूजे नाल लड़ रहे हैं, तो गुरु नानक साहब ने वो गल पहली वारी रियासतां तो उत्ते उठ के, उन्हां वंडियां तो उत्ते उठ के पहली वाली गल सारे खिते नूं एक कलावे च लैंदियां पहली वारी नां दिता। पूरा इतिहास पढ़ के देख लो, सारे वेद पढ़ के देख लो, सारे ग्रंथ पढ़ के देख लो, जे किते सारे खिते नूं मुड़ के पहली वारी किसी ने नां दिता सांझे तौर ते गुरु नानक साहब ने दिता। ते गुरु नानक साहब ने की आख्या, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता जमकर मुगल चढ़ाया। खुरासान दे खसमां ने आके इदां कह लो, हिंदुस्तान डराया, कल एक रियासत की गल नहीं की, उस पूरे खिते की गल करती, पूरे खिते जोड़ के देखा, सारे लोगों को सांझे तौर पर कहा यह खतरा किसी एक रियासत लिए नहीं, किसी एक इलाके लिए नहीं, ये पूरे देश लिए खतरा जे, पूरे खिते लिए खतरा जे, पूरे सभ्याचार लिए खतरा जे। जो वो सभ्याचार जिन्होंने हिंदुस्तानी सभ्याचार कहता है, वो सभ्याचार लिए खतरा जिन्होंने भारतीय सभ्यता कही जाती। तो गुरु नानक साहब ने पहली बार उस खिते नूं पहला नां जिहड़ा सब तो पहला नां जी हिंदुस्तान दे दिता, ते गुरु नानक साहब ने दिता। उदों पहला किसी ग्रंथ च नां नहीं, और एक बारी नहीं, बाबर बाणी दे विच 2 वारी दिता। और किहड़े अंदाज दिता वो देखियो, गुरबाणी दी आपां पंक्ति सांझी कर लैंदे आ।
सच्चा सो साहेब सच तपावस, सचरा न्याओ करेग मसोला, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान संभाल सी बोला। कि टोटे टोटे हो जाएगा तो हिंदुस्तान नूं संभालेगा कौन इस खिते नूं? बोला, जिहदी बोली तुहाडी नहीं, जिहड़ा तुहाडी बोली नहीं सुन, जिहड़ा तुहाडे धर्म बारे नहीं जानदा, जिहड़ा तुहाडे सभ्याचार नहीं बारे नहीं जानदा, जे तुसीं कल्ले कल्ले रह कल्ली कल्ली देश दे तौर ते लड़दे रह, जे तुसीं हुण इकट्ठे ना होए, जे तुसीं एक मुठ ना होए, जे अपनी फौजी शक्ति बलवान ना कीती तां हिंदुस्तान संभाल सी बोला। ਉਹ बोला ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। और गुरु नानक साहब ने बाबरवाणी के शब्द च आख्या, कोटि हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया धाया, पीर बैठ गए धर्म दियां शक्तियां वाले, जा मीर सुनिया धाया, जिहदे कोल फौज की ताकत सी, बाबर सी, जो पता लगा हमला करके आया तो पीर जिहड़े सी वो जाप करन लई बैठ गए, मंत्र पढ़न लगा, जंतर करन लग पए। कोटि हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया धाया, थान मुकाम जले बिज मंदिर, मुश मुश कोयर लाया। पर की होया कि थावां नूं साड़दा होया, घरां नूं अग्गां लाउंदा होया, मंदिरां नूं अग्गां लाउंदा होया, घरां नूं अग्गां लाउंदा होया, दुकानां नूं साड़दा होया, थान मुकाम जले बिज मंदिर, सारियां नूं अग दी भेट करदा होया। बाबर गां वधदा आया, मंत्र पढ़दे रहे ते इत्थे तक आ गया कि राज महलां तक बाबर पहुंच गया। मुश मुश कोयर लाया कि राजकुमार नूं भी रोना पै गया। फौजी शक्ति मुकाबला करन जोगी नहीं सी, पीर मोड़े बिठाते इस मुकाबला करने के लिए, वो मंत्र पढ़ते सन। तो गुरु नानक साहब ने उत्ते तंज की कि कोई मुगल ना हुआ अंधा, मंत्र पढ़े गए सन कि मुगल सिपाही अन्ने हो जाए, कोई मुगल ना अंधा हुआ अंधा, किने ना परचा लाया, मुगल का कोई अन्ना होया ही नहीं सिपाही, किसी ने परचा लाया। मंत्रा ने फौजां नूं नहीं डकना हुंदा, जंतरा ने फौजां नूं नहीं डकना हुंदा, तंत्रा ने फौजां नूं नहीं डकना हुंदा। ते गुरु नानक साहब इत्थे अगले बंद विच सेध दिंदे ने कि जिहदे कोल फौजी शक्ति ज़्यादा होएगी, जिहदे कोल हथियार ताकतवर होणगे, जिहदे कोल हथियार वड्डे होणगे, जिहदे कोल फौज ज़्यादा होएगी, जिहदे कोल बहादरी ज़्यादा होएगी, जंग के मैदान च उही जित प्राप्त करेगा जिहड़ा मरना मंड लवेगा चंगे हथियार हत्थ च लैके। ते गुरु नानक साहब ने अगले बंद च गल करती, मुगल पठाना भई लड़ाई, रन विच तेग चलाई, मुगल पठाना भई लड़ाई, रन में तेग वगाई, ओनी तुपक तान चलाई, ओनी हस्त चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगाह पार्टी, तिना मरना भाई। कहते मुगल पठान दोने लड़ रहे हैं। यह भी तंज है एक तरह का कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानी लोगों का, भारत भारती लोगों का, अपनी जन्मभूमि कहते हैं, इत्थे जम्मे वाले लोग ने, वो नहीं दोनों लड़ रहा है। पठान भी बाहरों आए हुए हैं, वो देश से आके हमलावर होकर मालक बन बैठे ने, मुगल भी बाहरों आए ने। ते कितनी वड्डी यह बदनसीबी होएगी देश की कि देश के उत्ते कब्जा करने के लिए बाहरों आईयां दोनों शक्तियां लड़ रही ने। भी मेरा कब्जा रहना है, ਜਾਂ पठान इसलिए लड़ रहे हैं कि उन्होंने कब्जा रह सके, गुलाम बनाई रखन। मुगल इसलिए लड़ रहे हैं कि पठाना तो राज खो लेना। दोनों इस्लाम वाले बाहरों आए हमलावर, दूजे धर्मां वाले। तो गुरु नानक साहब ने भी तंज किया, मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग वगाई, ओनी तुप कतान चलाई, ओनी हस्त चढ़ाई। एक बन्ने तो तीर कमान चल रहे हैं हत्थां दे उत्ते, जां हत्थां वाले हथियार ने, पर दूजे कोल एक बन्ने हत्थां वाले हथियार ने, सिर्फ शस्त्र ने, दूजे बने अस्त्र ने, तुपक ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੀ ਤੁਪਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਦੂਕ, ਤੋਪ ਦਾ ਛੋਟਾ ਅਰਥ। ਤੁਪਕ ਤੋਂ ਤੋਪ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਸਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ है, उदों भी गल सच सी। गुरु नानक साहब आखे जिहदे कोल हथियार चंगे सन, जिहदे कोल फौजां चंगियां सन, जिहदे कोल हथियार चंगे सन, जिहदे कोल अस्त्र सन,
उन्होंने शस्त्रां वाले नूं हरा दिता, जिनकी चीरी दरगाह पार्टी तिन्ना मरना भाई उन्होंने मौत आ गई, जिन्होंने कोल हथियार माड़े सन। समझ लो दरगाह दे विच भी उहदा करबंद खुट गया ते देश दे उत्ते काबज होकर बैठ गया लोग जिहड़े बाहरों हमलावर धारवी सन। और इत्थे सतगुरु ने चेतावनी दी बैठ के कि जब तक तुसीं पूरे दोष नूं एक मुठ करके उन्होंने मुकाबले ते खड़े नहीं होंदे, तुसीं कल्ली कल्ली इतिहास खड़े नहीं हो सकेगी। हिंदुस्तान संभाल सी बोला, हिंदुस्तान सारे नूं बोला संभाल लेगा। तुहाडी बोली वाला नहीं होएगा, तुहाडे सभ्याचार वाला नहीं होएगा। और जदों तुहाडी बोली वाला नहीं होएगा, तुहाडे धर्म वाला नहीं होएगा, तुहाडे सभ्याचार वाला नहीं होएगा, तुहाडी संस्कृति वाला नहीं होएगा, तुहाडी लोकधारा वाला नहीं होएगा, वो इन्हां सारिआं नूं नेश तो नबूद कर देवेगा। वो तुहाडे धर्म नूं नुकसान पहुंचाउण दे लई तुहाडे मंदिर भी ढाएगा, तुहाडे धार्मिक चिन्हां ते भी हमला करेगा। इस करके इसे सेध दे विच कलगीधर पातशाह ने आख्या कि सिख ने सुतंत्र विचरना ते राजकाज के कामां उत्ते दूसरे मतां दे पुरुषां नूं अधिकार नहीं देना। अज दी समय की गल कर लीए, बाबा भेला जी जिन्हां कोल मैं बचपन च विद्या प्राप्त की, विद्या दा ते पहले सन मेरे एक तरह के मैनूं नाम सिमरन वाले लाया, गुरबाणी दी संथਿਆ वाले लाया। बाबा भेला जी क्या करते सी कि किसी कौम का किसी देश का भविख उस समय तक सुरक्षित नहीं हुंदा जब तक उस कौम दे विचों एक पूरी गिनती तक दे लोग, जिहड़ी गिनती गिनी जा सकती होवे, नुमाइंदे जिहड़े योग गिनती दे विच जद ताईं ਉਹਦੇ कानून बनाउण वाले इदारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बैठते। अज के समय 'ਚ पार्लीमेंट विधान सभा उधर राज सभावां हुंदियां सी। जब तक किसी देश की पार्लीमेंट च, किसी देश की विधान सभा दे विच, किसी देश की राज सभा दे विच तुहाडे नुमाइंदे किसी देश की लोक सभा दे विच योग गिनती च नहीं बैठे, उत्थे तुहाडे कानून तुहाडे हक च नहीं बनने। लाई जाओ बाद च मोर्चे ते कानून लागू भी हो जाने आ। ते कानून लागू करने वाले इदारे हैगे जुडिशरी ते पुलिस ते फौज। ते जे तुहाडी कौम के नुमाइंदे फौज च नहीं, पुलिस च नहीं, जुडिशरी च नहीं, तो फिर कानून लागू भी हो जाने, उन्होंने डक कोई नहीं सकता। बैठे हो जिन्ने चर मर्जी सड़कों पर जाके। एक गल बाबा भेला जी क्या करते सन, इस करके की करना है, किसी भी कौम ने जे उहदा भविख अपना वधिया रखना है तो उन्हें अपने देश दी सतह के गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ, राज सभा ਦੇ ਵਿੱਚ, विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ अपने योग नुमाइंदे भेजने ने और चंगी गिनती च भेजने ने, अपनी गिनती के तवाजन के मुकाबले च भेजने ने। घट्टो घट्ट राजकाज के कामां उत्ते, अपनी कौम के कामां उत्ते दूसरे नूं हक नहीं देना, अपने कानून आप पास करने ने। किसी भी देश के बैठा उसकी मुख धारा के उसकी राजनीति के हिस्सा लेना है, मुख धारा ही शामिल होना पेगा जी, उसकी राजकाज के सत्ता के गलियारिਆਂ 'ਚ बैठना है। तुसीं बागी बन के नहीं उत्थे बैठ सकते। ये गल जिहड़ी आ बिल्कुल बाबा भेला जी अज के समय नाल जोड़ के क्या करते सी, मुख धारा की पॉलिटिक्स दे विच, मुख धारा की राजनीति 'ਚ जाना है ते नाल नाल देश की फौज दे विच, देश की पुलिस दे विच अपने नौजवानों नूं भेजना है, ताकि तुहाडी उत्थे जिहड़ी गल कीती जा सके, तुहाडी गल उत्थे मन्नी जा सके, तुहाडी गल दा कोई वजन पै सके। जो तुहाडे नुमाइंदे उत्थे नहीं तो तुहाडी गल दा वजन भी कोई नहीं रहना। ये भी और इत्थे इस गल नूं एक होर अंदाज च आख लवां, थोड़ा समा रह गया पर मैं कह देवां जांदे जांदा कि कलगीधर पातशाह ने सिख नूं हन्ने हन्ने मीरी दित्ती है। हन्ने हन्ने का मतलब है जिथे घोड़ा खड़ा कर दिता उत्थे तेरा राज है, जिथे तू बह गया उत्थे तेरा राज है। हन्ने हन्ने मीरी है। और सिख दी हन्ने हन्ने मीरी का मतलब पता की है कि सिख ने अपनी लोड़ां दे लई, अपने परिवार दीयां लोड़ां दे लई किसी का मुथाज नहीं बनना। हथी किरत करनी है, हथी किरत करते आप कमा के खाना है, किसी का मंगता नहीं बनना, मंगता मुथाजी हो जाएगी। हथी किरत करके जो आप कमा के खाना, अपनी लोड़ां दी आप पूर्ति करनी है, किसी का देनदार नहीं बनना, किसी का करजाई नहीं बनना। जो देनदार बन गया, करजाई बन गया, जो अपनी लोड़ां दे लई किसी की मुथाजी आ गई तो सुतंत्र नहीं विचर सकेगा। सो सिख ने सुतंत्र विचरना है, किरत करनी है, उद्यम करना है। इसे करके सतगुरु ने आख्या सी, उद्यम करेंदियां जियो तू कमावदियां सुख पहुंचे, ध्यानदियां तू प्रभ मिल, नानक उतरी चिंत। परमात्मा का नाम जपदियां होया, किरत करदियां होया जे असीं इदां विचरांगे फिर सतगुरु दे इस वचन की सानूं समझ आएगी। सुतंत्र विचरना है, राजकाज के कामां उत्ते दूसरे मतां दे पुरुषां नूं हावी नहीं होण देना, ताकि वो तुहाडे बारे अपनी मनमर्जी के फैसले लागू ना कर सकन।
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ